شافينا مولانا محمد وحبيبنا شافعنا سيدنا مولانا محمد الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه وآبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين والسلام بارك الله على ملة الإسلام العزيز حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی کتاب سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جس حدیث پاک کو میں نے موضوع سخن بنایا آقا ارشاد فرماتے او حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں عزیز میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہے اس کو گفتگو کریں گے اگر ہمارا آپ نظر امید سے بھیجنے کے بعد تو بڑی دور تک بات پہنچتی ہے مگر میں آپ کو خوش گزار صرف چند باتیں کر دوں یہ ہے کہ اس حدیث پاک کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں اور حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں عزیز دوستو شاعر کہتے ہیں یعنی کوئی ایسے وقت شاعر نہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد امامت سابقہ علی جی رحمت رضوان کی شاعری کو پہلے میں پیش کروں کیونکہ جس ہستی کے تعلق سے اس محفل کو سجایا گیا ہے وہ ہستی ہی عظیم ہے تو ان کے شان میں شاعری کرنے والی ذات بھی عظیم الشان ہونی چاہیے کہ جو شہید ہو کربلا کی دھرتی میں 10 محرم الحرام کی تاریخ میں ان کا کوئی مثال نہیں تو ان کی شان میں ذات غنی کرنے والے ایسی ذات ہو جس کی شاعری کا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد امامت سابقہ علی جی رحمت رضوان فرماتے ہیں اور حضور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں لکھتے ہیں اور اپنی شاعری کرتے ہیں کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی واقع حسین معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی واقع حسین تمثیل نے اس نور کے ذریعے آدھے سے حسن بنے تو آدھے سے حسین عزیز دوستوں بزرگوں اور ایک کلام کے اندر یوں لکھتے ہیں ایک سینہ تک مشاہبے ایک سینہ تک مشاہبے ایک وہاں سے پاؤں تک حسن صفتین ان کی جاموں میں ہے نیما نور کا اس کے بعد آگے لکھتے ہیں صاف شکلیں پاک ہیں دونوں کے ملنے سے آیا صاف
پاک ہیں، دونوں کے ملنے سے آیا خطِ توام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد معاصر سابقہ علی رحمت الرضوان اپنے اس شاعری سے یہ جواب دینا چاہتے ہیں، جس نور کو رب نے اپنے نور سے پیدا کرا، اس نور کے دو حصے کیے گئے، ایک سے حسن بنے ہیں تو ایک سے امام حسین بنے ہیں، دونوں بھائیوں کو اس نور سے بنایا گیا۔ کبھی اعلیٰ حضرت نے لکھا تمثیل میں، مثال میں اس نور کے دو حصے کر دیے، آگے سے حسن بنے تو آگے سے حسین بنے، اور دونوں نور کے ملنے سے ہے آیا آیا بابا ظاہر کے یعنی ہے ظاہر، ایک سینہ تک ہے، امام حسن سینہ تک ہے بالکل نبی کے مشابہ، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک تو سینہ تک نبی کے مشابہ، شکل و صورت میں، حسن و جمال میں، خوبی میں، اور ایک وہاں سے پاؤں تک ہے، آدھے آدھے کر کے ڈیوائڈ کیے نا اس نور کی، تو سب کا حسن صفین یعنی حسن و حسین کے حسن ان کی جانوں میں ہے، نیما نور کا وہ نور دونوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے بعد آپ شکل پاک سے ہیں، امام حسن اور حسین کے شکل پاک سے ہیں، شکل جو ہے پاک ہے، دونوں کے ملنے سے ہے آیا، یعنی امام حسن کے آدھے حصے کو امام حسین کے آدھے حصے کو ملا دیا جائے تو معلوم یوں ہوگا کہ پورا نبی یہ کائنات کی شکل ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خطِ توام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، وہ کوئی اور ورقہ نہیں، وہ حسن مجتبیٰ اور حسین مجتبیٰ کا ورقہ ہے۔ عزیز دوست بزرگوں، اب میں بتانا آپ کو چاہوں کہ امام حسن اور امام حسین دونوں آپس میں بھائی، امام حسن کے تعلق سے آقا نے ارشاد فرمایا تھا میرا یہ حسن فرزند اجمل ایسا بیٹا ہے کہ دو چیزوں میں صلح کرے گا، اس چیز حدیث کے ساتھ امام حسن بنے، امام حسین کے بچپن کا زمانہ اور شہادت کی خبر معروف ہو چکی تھی، وہ مشہور ہو چکی تھی کہ امام حسین کو ماریہ کی سرزمین میں، کربلا کی دھرتی میں میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ اس وقت صحابی رسول جلیل القدر مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جوزائے محترمہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی، بیٹھی ہوئی تھی، آقا اسی طرح سے تشریف فرما تھے جس طرح آپ کے پیرو مرشد آپ کے بیچوں بیچ تشریف فرما ہے، آقا تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں، ام فضل بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بچپن کے زمانے میں اپنے نانا کے گھوڑے سے کھیل رہے ہیں، آقا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، ام فضل دیکھتی ہے، فرماتی ہے کہ اے آقا کائنات حضور احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابھی تو آپ کے روا سے آپ کے ہوش میں کھیل رہے ہیں، آپ بیٹھے بات کر رہے تھے، مگر ابھی اچانک آپ کے آنکھوں میں آنسو، اس آنسو کی وجہ کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے آقا رحمت صاحب قبر حکمت حضور احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ مجھے فدا فرماتے ہیں کہ اے ام فضل میں تو ابھی یہاں بیٹھا ہی ہوں، مجھے جبریل امین نے خبر دی کہ میرے اس فرض سے ارجمند کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے، وہ سب ریت میں دھوپ بڑی کٹھین کے روپ ہوگی، لوگ اور چاند میں شہید کر دیے جائیں گے، اور وہاں کی مٹی کو مجھے لا کر کے دیے، میں نے سونگا اور وہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے کہ اسی دھرتی کو کربلا کی سرزمین کہتے ہیں، اور وہاں سے کربلا کی بو آتی ہے، اس لیے میرے آنکھوں میں آنسو جاری ہے،
अपने चौथाए मोहतरमा से एक चौथाए मोहतरमा को इसे उम्मे सलमा कहते हैं, उनके सुपुर्द करते हैं। अजीब दोस्तों और ये फरमा देते हैं, अरे उम्मे सलमा इन्हें किसी शीशी में डाल करके संभाल के रख देना, तब मेरा ये बेटा शहीद हो जाएगा, ये मिट्टी खून की शब्द को इख्तियार कर जाएगी। अजीब दोस्तों मुस्तफा करीम के प्यारे नवासे करबला की धरती में शहीद होते हैं, यहाँ खून की शक्ल को मिट्टी इख्तियार कर जाती है। अजीब दोस्तों अब मैं मुख्तसर सी महफिल में आपको बताता चलूं कि यजीद सईद जो मेरे माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद तख्त नशीब हुआ, होने के बाद उन्होंने आमिर के जरिए से लोग के अतराफ जवानी में हुकूक के जरिए से लोगों को ये पैगाम देता है कि सब जो है मेरी फैज करे। इसी तरह से मदीने के आमिर को भी ये खत और लेटर के जरिए से ये पैगाम दिया कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से मेरी फैज ली जाए और उसका विश्व हुजूर और मारूफ था, मशहूर था कि 3 शाबाना तक वहाँ की औरतों को हराम कर रखा था। नबी का नवासा जिंदा हो जिसको आकाए ने साथीवे मंसूर हिम्मत ने 7 साल 7 माह 7 दिन तक अपने गोद में लेकर के आने हो और बराहे रात मुस्तफा करीम से फैज याफ्ता इमाम हुसैन हो, वैसे जालिम ज़फ़ाकार के हाथ में हाथ दे करके फैज कैसे कर सकता था। अजीब हो इमाम हुसैन जो है जवाब देते हैं, मैं यजीद की फैज को कबूल नहीं करता, उसका विश्व हुजूर को मारूफ है। अजीब इनकार कर देते हैं इमाम हुसैन। ये बात यजीद सलीब तक पहुंचती है, वो बहू हो जाता है, गुस्से में आता है और वो फिर लेकर के जरिए से ये खबर देता है आमिर को इमाम हुसैन से कह दो घर में या उनकी सर को काट के मेरी शब्द की। अजीज दोस्त बुजुर्गों, ये पैगाम इमाम हुसैन को दिया जाता है। हज़रत इमाम हुसैन बिल्कुल मुकम्मल तौर से उसका इनकार करते हैं और बार जब कोफा के लोग भेजते रहते हैं, करीब 150 के करीब अब पहुंचते हैं। इमाम अली मकाम जो है ये इरादा कर लेते हैं कि आप हमें मदीने से मक्का हिजरत करना है, तो लाना के रोहों पे जा करके जो है हाज़िरी देते हैं और ये बात का अर्ज करते हैं, अरे मेरे वाला राम, मैं तेरा रोह नवाता हूँ जिसके लिए मेरी ने अपनी बच्चे को लेकर हाजिर हुई, मैं तेरा रोह नवाता हूँ जिसके रोने को फरिश्ता घबराया करते थे। अरे मेरे नवाजा, मैं वो हुसैन हूँ कि आपके कांधे पर हम चढ़ते थे और फारूक की आदम आपका खलीफा अव्वल है। अरे मेरे नवाजा, उनकी नजर पड़ी तो वो ये कह उठे कि सवारी कितनी अच्छी है, आपने जवाब दिया था, देखो सवार कितना अच्छा है। आज वो आपका नवासा आपसे इज़्न लेने के लिए आपके दर पे हाजिर है। लाला मुझे इजाजत को दे दे कि मेरे हाथ से रुखसत हो करके जाओ। इतने में आंख लग जाती है और मोहम्मद मुस्तफा जो है अपने नवासे को सबकी तलकीन करते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे नवासे, तुम उस धरती पे चलेगा, अल्लाह की बात पर तवक्कुल रखना और सब्र करना और इस्तिकामत में रहना। तुम आकर के अनकरीब रूप से मिलोगे। फिर उसके बाद हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिदाए माहिरा हज़रत फातिमा को ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दोस्तों को उठते हैं, इजाजत लेते हैं और कहते हैं, ऐ मेरी अम्मा जान, मैं वो हुसैन हूँ जिसके लिए बच्चा जो है लेकर के आए, आप मुझसे
से बहुत प्यार फरमाती थी। आज तुम्हारा लाडला उनकी इजाजत लेने के लिए है। आप इस वजह से आका नेमत की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बेटे हज़रत इमाम अली मकाम से फरमाती है, बेटा जाओ कब्र की दामन को छोड़ना नहीं। अजीब दोस्तों लोगों, लेकिन फातिमा ज़हरा जन्नती औरतों के सरदार है। नाना वो अजीब हस्ती है जिसके सदके से रब ने पूरी दुनिया को पारी से वजूद में लाया। आप मौला अली कमल्ला वजहुल करीम है। काका फरमाते मैं इल्म का शहर अली को क्या दरवाजा है। वो अजीब हस्ती के बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सबको मालूम है कि ये इमाम हुसैन को करबला की धरती में मेरी उम्मत के लोग शहीद कर देंगे। नाकाए कायनात को फरमाते हैं कि मौला मेरे इस नवासे से वो मुसीबत को दूर फरमा दे। मौला अली दुआ करते हैं, ऐ इलाहुल आलमीन मेरे इस फरजंद अज़मत से वो मुसीबत को दूर फरमा दे। हज़रत फातिमा दुआ करती है, ऐसे सभी बेटे होते हुए हमारे बेटे को उस अजीब इम्तिहान में कदम रख मौला और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। अजीब वहाँ इजाजत लेकर के इमाम अली मकाम अपने घर पहुँचते हैं। सबको इस बात की खबर देते हैं आप चलना है। उसके बाद लेकर के मक्का पहुँचते हैं। अकाबिर अजिल्ला सहाबाए किराम मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और दिगर अकाबिर सहाबा मौजूद है। मक्का की धरती पे वो सहाबाए किराम कहते हैं, ऐ इब्ने हैदर आपको जाने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि मूसा के लोग आपके साथ वफा नहीं करेंगे बल्कि बेवफाई करेंगे। मुस्तफा करीम के प्यारे नवासे और अज़ीज़ाए अकाबिर सहाबाए किराम को जवाब देते हैं, आए मेरे नबी के जानसार सहाबियों, आप लोग सही कह रहे हो, मगर मैंने मेरे वालिद गिरामी से सुना है कि मेरे नाना राम मेरे नाना राम अहमदी मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मक्का की सरजमी से एक बकरी जमा होगी और उस बकरी के जमा होने से काबतुल्लाह की बेहुरमती होगी। मैं समझ रहा हूँ ऐ मेरे नबी के जानसार सहाबियों, कहीं वो बकरी मैं ना बन जाऊं, इसलिए मैं खूब लगाने के लिए तैयार हूँ। शहीद आजम हज़रत इमाम अली मकाम नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल इमाम हुसैन फैज़ान सूफिए मिल्लत फैज़ान यूसुफे मिल्लत नारे तकबीर। इमाम अली मकाम उन अकाबिर सहाबा को ये जवाब देते हैं, मगर सहाबा फिर मशवरा देते हैं कि पहले आप अपना नाइब बना करके मुस्लिम बिन अकील को भेज दे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील वहाँ पहुँचे, हालात का जायजा ले, जायजा लेने के बाद बता दे, फिर आप यहाँ से जाए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को नाइब बना करके इमाम हुसैन भेजते हैं, मगर हज़रत मुस्लिम बिन अकील को उनके बड़े मोहब्बत से अपने दो साहबजादे थे, उन दोनों को साथ लेते हैं जिनका नाम मोहम्मद है। को लेकर के वहाँ पहुँचते हैं। मूसा की धरती में लोग इस्तेमाल करते हैं, करीब 12,000 के लोग गैर उम्मीद हो जाते हैं और हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील आदि शरीफ के यहाँ अपने दोनों बेटे को छोड़ आते हैं। इमाम मुस्लिम पहुँचते हैं, लोग कर्म की निगाह से देखते हैं
इमाम मुस्लिम की हाथ से हाथ देकर के बैत होते हैं। यजीद वलीद को पता चलता है कि इमाम मुस्लिम इमाम हुसैन का नाइब बन करके कूफा की धरती में तशरीफ ला चुके हैं। लोग तो खुद भेजे थे, सब लोग उनके हाथ में हाथ दे करके बैत हो रहे हैं, बहुत से हो चुके हैं। तो उस वक्त कूफा की धरती का गवर्नर और हाकिम नुअमान बिन बशीर था। उन्होंने कुछ एतराज नहीं किया, किसी किस्म के कोई कदम को आगे नहीं बढ़ाया। हजरत मुस्लिम के खिलाफ वो तुरंत हजरत मुस्लिम के खिलाफ जो आवाज वहां का गवर्नर नुअमान बिन बशीर नहीं उठाता है, उसको संसद से माफूल कर देता है। और सत्रह का गवर्नर जो फांसी को हाजिर था, इब्ने जियाद, उन्हीं कूफा का गवर्नर बना दिया जाता है। ये बात हुजूर था और इस हुजूर में मशहूर था, इनको भी वहाँ का गवर्नर बनाया जाता है। ये बसरा की सरजमी से निकलता है, ये सोच लेकर के कि वहाँ मुस्लिम इमाम मुस्लिम के लोग कर चुके हैं और इमाम हुसैन आजम के लोग मुंतजिर हैं। वो चालाकी करके एक जमात को साथ लेता है, एक और कई अफराद को साथ लेता है। उन्हीं रास्तों से आता है जिन रास्तों से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा की सरजमीन से दाखिल होते। गाँव के 12,000 के करीब लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील की बैत कर चुके थे। उस वक्त हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील जो है इमाम हुसैन को कद लिख चुके थे। यहाँ के हालात ठीक है, शानदार है, आप तशरीफ लेकर के आए। उन्हीं रास्तों से वो इब्ने जियाद चालाक चतुर आदमी लईन जो है आता है। कूफा के लोग समझ नहीं पाते हैं कि इमाम मुस्लिम है कि फांसी को फाजिल इब्ने जियाद। अच्छे खासी तादाद में इस्तेमाल करते हैं। शेरानी जूही इब्ने जियाद उठता है, तुरंत अपने जुब्बा को उतारता है। वो मक्कारी कार करके वहां आकर के कीले तक पहुंचा। उतारने के बाद फौरन ये ऐलान करता है, ऐ कूफा वालों, मुस्लिम की अकील की बैत को तोड़ दो, वरना तुमने तो मुस्लिम बिन अकील की बैत को करके मेरे राह और दबदबे को दावत दे दी है। अजीज लोगों इस तरह से धमकियां देता है, लोग जो है बैत तोड़ देते हैं। अजीज लंबी गुफ्तगू है इस मामले में, मगर मैं इख्तिसारन आपको बताना चाहूँ कि इसी 10वीं तारीख को इमाम हुसैन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला की धरती में शहीद कर दिया गया। तो वहाँ एक ही नसूल से खुद सिया को नहीं, बल्कि हाल रसूल के जितने नसूल से खुद सिया थे सबों को वहाँ एक के बाद शहीद करता गया। मगर इमाम हुसैन आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की प्यारी बहन थी। अजीज दोस्तों, वो अपने दो बच्चों के साथ वहाँ पे मौजूद थी। उन्हें जो है ये बर्दाश्त नहीं हुआ, भाई से इजाजत लेकर के अपने दोनों बेटों को भेज देती है। वो नन्ना मुन्ना सा बच्चा मैदान करबला में इस तरह से लड़ते हैं तो मालूम यूं होता है कि ये शेर का नवासा मैदान कारोबार में आया है। मुकाबला जल्दी से कोई नहीं कर पाता। अजीज दोस्तों, एक बार भी हमला करके दोनों बच्चों को घोड़े से उतार देते हैं। इब्ने साहब के लश्कर फिर उसके बाद एक बाद दोनों बच्चों को शहीद कर दिया जाता है। दोनों बच्चा उस करबला की धरती में शिद्दत है, क्या की शिद्दत है। पानी को दे दे, नन्ना मुन्ना सा बच्चा है। कोई आज दफा
बार पानी नहीं पेश करता। इमाम हुसैन पुकारते हैं, ऐ मेरे प्यारे भांजे, तुम अभी अपने नाना से जान लोगे, अभी शहादत का जाम रोश कर लो। और जिस दोनों बच्चा शहीद हो जाते हैं, मगर हजरत ज़ैनब को माँ की ममता तड़प जाती है। इमाम हुसैन दोनों भांजे को खेलने में लाते हैं। और अजीज दोस्तों बुजुर्गों, पहले कैसे आधार के जो है जो औरतें होती है मस्कुरात सबको सब्र की तलकीन करते हैं कि तुम लोग जो है वह सजा न करो, बल्कि सब्र के दामन को थामे रखो। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हज़रत इमाम अली मकाम उस धरती पे इन सारी चीजों को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, फिर अपनी जान की कुर्बानी पेश करते हैं। मैंने जिस हदीस मुस्तफा को मौजूद सुखन बनाया, आका फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। यहाँ तो सरकार ने सुना हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ। आम मुस्लिमीन के ताल्लुक से आका ने इरशाद फरमाया, मन अबा मुस्लिमन फकत अबानी, मन अबानी फकत अबल्लाह। तो किसी मुसलमान को तकलीफ दे, आका फरमाते उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने मालिक के हकीकी को तकलीफ दी। आम मुसलमान के ताल्लुक से आका ने ये इरशाद फरमाया, वहाँ हुसैन आज़म है जिसके ताल्लुक से रब्बे महबूब ने फरमाया, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ। आम मुसलमान को कोई तकलीफ दे, मुस्तफा करीम को तकलीफ है। और करबला की धरती में हुसैन आज़म को तरह से तकालीफ उबने साथ से लश्कर यजीद बड़ी तरफ भेजा हुआ, बनाया हुआ इब्ने ज़ियाद, इब्ने साद और दिगर लोग इमाम हुसैन को तकालीफें देते हैं। तो क्या ये हो सकता है कि मुस्तफा करीम को तकलीफ ना होती हो? आम मुसलमान को तकलीफ दे तो नबी की रात को तकलीफ, वहाँ तो हुसैन आज़म को तकलीफ दिया जा रहा है, जिससे आका मोहब्बत फरमाते थे और फरमाते मैं उनसे वो मुझसे हैं। तो आप जिससे अंदाजा करें तो हुसैन आज़म को तकलीफ दे, गोया कि उन्होंने इमाम हुसैन को तकलीफ नहीं दी, बल्कि मुस्तफा करीम की जात को तकलीफ दी। और जिन्होंने मुस्तफा करीम की जात को तकलीफ दी तो खुदा उनको अब उनका हक क्या होगा? इन्हीं चंद जुमलों को या फिर गुफ्तगू को सुनने जरा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रब्बी मुस्लिम इसकी सारे वकील अभी तबाह है जो कुछ भरा हुआ